So very good evening, all the participants. Today we shall start with the bankruptcy order for individuals and partnership firms. So what are the sections which can trigger bankruptcy? There are three sections: 100, 115 and 118. 80. So can you briefly summarize what is there in section 100? Section 100 में क्या है? Bankruptcy कब start होती है? What is the trigger point? सर फ्रॉड अगर होगा तो Yes. So if the application is being moved by the debtor with an intent to defraud the creditors or RP, then adjudicating authority may order bankruptcy. And in this case, the application shall be filed by the creditor, not the debtor. Okay. Section 115. Section 115 क्या है? When the repayment plan fails. When the repayment plan is not approved. So then the debtor or creditor both can file for bankruptcy. और सेक्शन 118 क्या है? Repayment plan was approved earlier, but it was not implemented fully, right? So the creditors who are not paid, they can initiate this process or the debtor can initiate this process. ठीक है? तो ये तीन है हमारे, सेक्शन 100, 115 और 118. इतना तो क्लियर है ना? चलिए आगे चलते. So application for bankruptcy. An application for bankruptcy of a debtor. An application for bankruptcy of a debtor may be made by a creditor individually or jointly with other creditors or by a debtor to the adjudicating authority in the following circumstances. ठीक है? Namely, where an order has been passed by the adjudicating authority under subsection 4 of section 100, or when an order has been passed by an adjudicating authority under subsection 2 of section 115, or where an order has been passed by an adjudicating authority under subsection 3 of section 118. ये तीनों मैंने सेक्शन आपको बता. ठीक है? An application for bankruptcy shall be filed within a period of 3 months of the date of the order passed by the adjudicating authority under the sections referred to in subsection 1. So here also they are giving a leeway कि भाई पॉसिबल है कि अभी भी कुछ एग्रीमेंट हो जाए, है ना? तो दे हैव गिवन ए पीरियड ऑफ 3 months कि भाई 3 महीने में आप एप्लीकेशन बेशक फाइल कर दो. हो सकता है 3 महीने में कोई एग्रीमेंट हो जाए, यहां पर भी हो सकता है. ठीक है? Now where the debtor is a firm, the application under subsection 1 may be filed by any of its partners. ठीक है? अब यहां थोड़ा सा डिफरेंस है. ये क्यों बोल्ड किया मैंने? फाइल्ड बाय एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स. कोई रीजन बता सकते हैं ये क्यों बोल्ड किया गया? सर वहां पे डेटर करता है ऑल या मेजॉरिटी फाइल करता है पार्टनरशिप फॉर्म में. हाँ, और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट. एनी ऑफ हाँ और यहाँ हाँ पे एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स होगा. हाँ, यहाँ पर एक सिंगल पार्टनर भी कर सकता है. यहाँ कोई ज्वाइंट वाली कॉन्सेप्ट या मेजोरिटी वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, इंसॉल्वेंसी में है. ठीक है जी? तो ये ध्यान रखना है. जहां जहां भी मैंने बोल्ड किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, तो उसका कुछ मतलब है, इसीलिए हाईलाइट किया हुआ ताकि वो बात ध्यान में आ जाए. नाउ सेक्शन 122, एप्लीकेशन बाय डेटर. द एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी बाय द डेटर शैल बी अकम्पनीड बाय. आपको जब डेटर एप्लीकेशन लगा रहा है तो उसके साथ में क्या क्या लगाना है? रिकॉर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. ये पूरा का पूरा जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसका पूरा रिकॉर्ड आपको लगाना है. ठीक है? The statement of affairs of the debtor in such form and manner as may be prescribed on the date of the application for bankruptcy. ठीक है? और a copy of the order passed by the adjudicating authority under chapter 3 of part 3 permitting the debtor to apply for bankruptcy. ठीक है? तो ये चीजें आपको लगानी. The debtor may propose an insolvency professional as the bankruptcy trustee in the application for bankruptcy. यहां पे may लिखा है. may क्यों? ताकि आप खुद भी एप्लीकेशन लगा सकते. The application referred to in subsection 1 shall be in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed. तो रूल 6 और रूल 16. तो एक बार रूल 6 देख लेते हैं कि रूल 6 क्या बोलता है और रूल 16 क्या बोलता है. ये है रूल 6 हमारा. रूल 6 क्या बोलता है? एप्लीकेशन बाय गारंटर. तो एप्लीकेशन गारंटर ने कौन से फॉर्म में लगानी है? फॉर्म ए में. फॉर्म ए अलॉन्ग विद एन एप्लीकेशन ऑफ 2000 रुपीज. 2000 रुपीज. और वहां जो एप्लीकेशन लगा रहे थे
इंसॉल्वेंसी में। वो कौन से फॉर्म में थी? वो भी सर सेम ही था, फॉर्म ही हाँ, था। और वो भी पैसे उतने ही थे, 2000। 2000 ही थे, यस सर। हाँ, द गारंटर shall serve forth with a copy of the application referred to in sub rule 1 to every creditor and corporate debtor for whom the guarantor is a personal guarantor। एवरी क्रेडिटर लिखा है, ठीक है, एवरी क्रेडिटर इन दी कॉर्पोरेट डेटा फॉर हुम दी गारंटर इज ए पर्सनल गारंटर। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन, ये रूल 6 है और रूल 16 है ना, ये रूल 16। एप्लीकेशन बाय गारंटर, ये है फॉर्म ए। तो इसके अंदर ये क्या क्या लगा रहा है, ये देखिए, ये सारी चीजें इसको लगानी है। लिस्ट ऑफ एसोसिएट्स ऑफ द गारंटर इंक्लूडिंग रिलेटिव्स हु मे बी क्रेडिटर्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जॉइंट एंड सेवरल, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर, लिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ गारंटर एंड इमीडिएट फैमिली। ठीक है, अब इसमें वो क्या पूछ सकता है? इसमें वो पूछ सकता है कि भाई जो लिस्ट ऑफ एसेट्स है, वो क्या एसोसिएट्स की जो लिस्ट ऑफ एसेट्स है वो भी लगानी है क्या? एसोसिएट इज हैविंग एसेट्स, तो क्या वो भी डिटेल लगानी है? भाई गारंटर एप्लीकेशन लगा रहा है इसमें, ठीक है, उसके एसोसिएट भी होंगे, तो क्या एसोसिएट की डिटेल भी लगानी है, यस और नो? हाँ सर, along with his associates। कहाँ लिखा है along with एसोसिएट? कहाँ लिखा, सेक्शन में? सर एसो सर वो जो एसोसिएट का जो डेफिनेशन है सर। नहीं, वो तो ये लिस्ट लगा रहा है ना, लिस्ट लगा रहा है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एसेट्स की डिटेल है एसोसिएट्स की, वो लगानी कि नहीं लगानी, क्वेश्चन ये है। सर इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ गारंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सक्लूडेड डेट्स, particulars of declaration by insolvency question, list of documents, ये सारी चीजें आपको लगा। इनकम टैक्स रिटर्न्स कितने साल की लगानी है? 3 साल। कॉपी ऑफ द पर्सनल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, ये थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि ज्यादातर 2 साल की डिटेल्स मांगता है, यहां पर कुछ चीजों में 3 साल की डिटेल मांग रहा है, तो पूछ सकता है ये। ओके सर। Debtors assets and liabilities, secured and unsecured debts, particulars of debts owed by the guarantor to associates of the guarantor for the previous 3 years, wealth tax statement, income tax statement, payment of indirect taxes including GST for the previous 3 years। अब वो पता क्या करता है इसमें, इसमें वो ऐसा करेगा कि वो ये लगा देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी अटैच्ड along with the application, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। और एक ऑप्शन ये दे देगा, पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग जीएसटी, तो आदमी सोचेगा यार जीएसटी की डिटेल थोड़ी लगानी होगी। अगर आप कॉमन सेंस से करोगे तो फंस सकते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो हमारे माइंड को अपने, अगर हम कॉमन माइंड से सोचें तो लगेगा भाई ये शायद ना होगी, ये है ना, तो ये ध्यान में रखना। तो ये डिटेल्स, ठीक है जी। तो एसोसिएट्स की डिटेल तो लगानी है, नेम, एज और एड्रेस। वो ऐसा भी पूछ सकता है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग द एसोसिएट्स इज नॉट टू बी गिवन। अब आदमी सोचेगा यार एज थोड़ी मांग रहा होगा, एज भी मांग रहा है। ठीक है जी, चलिए। ये होगा 479 पर चलते हैं दोबारा। एक मिनट। तो फॉर्म को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है
इसीलिए ध्यान में रखना है कि वो ना नेगेटिव, ताकि उसको हम अवॉइड कर सकें। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है जी। तो ये हो, ये फॉर्म के भी दर्शन कर लिए हमने। ये हमारा हो गया सेक्शन 122। ठीक है जी। एन एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी by the debtor shall not be withdrawn without the leave of the adjudicating authority। ठीक है। क्या बोल रहा है? अगर डेटर ने एप्लीकेशन लगा दी और उसको अब विड्रॉ करना चाहता है, तो दैट कैन नॉट बी विड्रॉन विदाउट द लीव ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है। तो सेक्शन 122 तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है सेक्शन 121 या 122 में? फॉर्म नो। आप ध्यान फॉर्म आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि फॉर्म में वो नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। वो चार ऑप्शंस दे देगा। वो नॉर्मली नेगेटिवली वर्डेड पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट टू बी अटैच्ड, नॉट टू बी इंक्लूडेड। 123, एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर। या फिर आपसे पूछेगा ये वाला, वो जो वेयर द डेटर इज ए फर्म, एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 मे बी फाइल्ड बाय ऑल द पार्टनर्स या बाय द फर्म बाय एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट, ऐसे करके पूछ लेगा, है ना। एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म मे बी फाइल्ड बाय, उसमें भी एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स रहेगा। तो आप कई बार ऐसा हमें लग सकता है भाई एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स तो नहीं होना चाहिए, मेजोरिटी होना चाहिए, है ना। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैंडेटरी कंडीशन, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि मेजोरिटी ने एप्लीकेशन लगा दी, क्या करेक्ट है? मेजोरिटी तो लगा ही सकती है, ये तो लीस्ट कंडीशन है। अगर सारे ही पार्टनर्स मिलकर लगाते हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी है ना। लेकिन ये है कि इट मे बी फाइल्ड बाई एनी ऑफ इट्स पार्ट। दोबारा एक बार फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, ये एनी वाला पॉइंट क्लियर करने के लिए। ये है हमारा फॉर्म एप्लीकेशन बाय गारंटर। तो इसमें देखते हैं कि भाई नेम एंड एड्रेस ऑफ द गारंटर इन द मैटर ऑफ नेम ऑफ द गारंटर, I/V, any other name by which the debtor is or has been known as applicable। लास्ट में देखते हैं साइन किसने किया है। सर इसमें लिस्ट ऑफ एसोसिएट्स दिख रहा था अभी पहले। कहाँ? तो लिस्ट तो है ही ना, लिस्ट तो बताया ही है लगानी है। हम तो कह रहे थे एसेट्स नहीं लगाने एसोसिएट्स के। ओके सर। दोनों में फर्क है ना। हाँ यस सर। भाई लिस्ट में क्या, लिस्ट में नेम एज एड्रेस देना है, तो जो एसोसिएट्स है वो थोड़ी देने हैं इनके। एसेट्स जो है वो सिर्फ इमीडिएट फैमिली के देने हैं। ये देखो ना, लिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ गारंटर एंड इमीडिएट फैमिली। अब इमीडिएट फैमिली और एसोसिएट्स में तो फर्क है ना। एसोसिएट्स तो ज्यादा वाइड है टर्म है ना। यस सर। एसोसिएट यस एसोसिएट में तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसके दूसरे पार्टनर है उनकी भी डिटेल्स आ जाएगी। यस सर। ये आई करंटली रिजाइडिंग एट हियर बाय डिक्लेयर एंड स्टेट एज फॉलोज। ये हो गया, और उसके बाद वेरिफिकेशन, signature of the guarantor, person authorized to act on behalf of the guarantor, please enclose the authorization document if this application is being submitted on behalf of the guarantor। चलिए दोबारा चलते हैं हम वहीं। मतलब अब आपको पता चल रहा होगा धीरे धीरे कि कितना केयरफुली हमारे को पढ़ना है।
एक एक वर्ड पढ़ना है। यस सर, हाँ एक एक वर्ड पढ़ना है सर। हाँ, ठीक है जी, ये भी हो गया। नाउ 124, 123, है ना, 123 का एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर क्या कहता है? The application for bankruptcy by the creditor shall be accompanied by the records of insolvency resolution process undertaken under Chapter 3, a copy of the order passed by the adjudicating authority under Chapter 3 permitting the creditor to apply for bankruptcy, details of the debts owed by the debtor to the creditor as on the date of the application for bankruptcy। अब देखो, क्रेडिटर के केस में क्या होगा, क्रेडिटर को दूसरे क्रेडिटर के डेट्स तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, है ना, वो तो अपने जो डेट्स ओड है उसी के बारे में बता सकता है ना, एंड सच अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रेस्क्राइब। तो इसके लिए आपको रूल नंबर 7 देखना है। तो रूल 7 देखते हैं, रूल 7 क्या कहता है, ये रूल 7 है, आपको फॉर्म बी में लगानी है अलॉन्ग विथ 2000 रुपीज फीस। ठीक है, और कॉपी किसको देनी है, गारंटर एंड दी कॉर्पोरेट डेटर। और ज्वाइंट एप्लीकेशन के केस में क्रेडिटर्स में नॉमिनेट वन अमंग देमसेल्व्स टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल द क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ज्वाइंट में नॉमिनेशन हो सकता है। चलिए, एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेट विच इज सिक्योर्ड, अगर सिक्योर्ड डेट है तो उसके साथ में क्या लगाना है आप, जस्ट अ मिनट। शैल बी accompanied by a statement by the creditor having the right to enforce the security that he shall, in the event of a bankruptcy order being made, just a minute, give up his security for the benefit of all the creditors of the bank। क्या एप्लीकेशन लगानी, अगर सिक्योर्ड डेट है और क्रेडिटर एप्लीकेशन लगा रहा है, कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर भी तो एप्लीकेशन लगा सकता है ना, तो वो क्या एप्लीकेशन लगाएगा, a statement by the creditor having the right to enforce the security that he shall, in the event of a bankruptcy order being made, give up his security for the benefit of all the creditors of the bankrupt, or a statement by the creditor stating that the application for bankruptcy is only in respect of unsecured part of the debt and an estimated value of unsecured part of the debt। If a secured creditor makes an application for bankruptcy and submits a statement under clause B of subsection 2, the secured and unsecured parts of the debt shall be treated as separate। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको उल्टा पढ़ें, इसका उल्टा मतलब ये है कि अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो वो सिक्योर्ड डेट के लिए एप्लीकेशन अगर लगा रहा है तो उस केस में उसको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, स्टेटमेंट देनी पड़ेगी दैट ही शैल गिव अप हिज सिक्योरिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स ऑफ द बैंकरप्ट। भाई उसने अगर गिव अप ही नहीं करनी फिर तो अपने आप ही रियलाइज कर लो, फिर एप्लीकेशन लगाने की जरूरत क्या है। समझ रहे हो आप, दोनों राइट है उसके पास। सर क्या, वही है, रेलिंक्विशमेंट ऑफ, हाँ रेलिंक्विश कर रहा है सर। हाँ बिल्कुल करना ही पड़ेगा ना, अगर रिलिंक्विश नहीं करना चाहता फिर तो अपने आप ही रियलाइज कर लो, फिर यहाँ आने की जरूरत क्या है, फिर तो आने की जरूरत ही नहीं ना, आपके पास सिक्योरिटी है ही, यस सर। आपके पास ऑलरेडी मॉर्गेज है चीजें, तो आप अपने आप ही रियलाइज कर लो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। यहाँ कब आना है, या तो यू वांट टू गिव अप या फिर आप अनसिक्योर्ड पार्ट के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हो तभी आओगे आप, है ना। इफ ए सिक्योर्ड क्रेडिटर मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी and submits a statement under clause B of subsection 2, the secured and unsecured parts of the debt shall be treated as separate debts। The creditor may propose, यहां पर भी may लिखा हुआ है, तो क्रेडिटर भी खुद भी एप्लीकेशन लगा सकता है। An application for bankruptcy under subsection 1 in case of a deceased debtor, ठीक है, तो अगर डिसीज डेटर है तो उस केस में इट में बी फाइल्ड अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब ऐसी बात इंसॉल्वेंसी में नहीं लिखी, नो सर। है ना। सर यहाँ पे प्रॉपर्टी डील हो रही है, दैट इज वाई। और बैंक्रप्सी हो रही है, प्रॉपर्टी डील हो रही है, तो लीगल हायर पे प्रॉपर्टी जाती है, हाँ, इसलिए लीगल हायर आ रहा है। अब वहां क्या होगा,
वहां अगर सर वहां हम पे तो वहां अगर हम फॉरेन वहां जुरिस्डिक्शंस की बात करें, जैसे मैं मलेशिया का लॉ स्टडी कर रहा हूँ आजकल, तो मलेशियन लॉ में लिखा है कि भाई अगर वो प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाती है फिर इंसॉल्वेंसी में, यहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं है। The application for bankruptcy shall be in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed. ठीक है। An application for bankruptcy by the creditor shall not be withdrawn without the permission of the adjudicating authority. तो दोनों के लिए लिख दिया, डेटर के केस में भी यही है और क्रेडिटर के केस में भी यही है। Now 124, effect of application. When an application is filed under section 122 or 123, 122 में by debtor, 123 में by creditor, तो यहां पर इंटरिम मॉरिटोरियम, और इंटरिम मॉरिटोरियम किसके लिए? अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द डेटर। ठीक है। और creditors of the debtor shall not be entitled to initiate any legal action or legal proceeding against any property of the debtor in respect of any of his debts. ठीक है। Where the application has been made in relation to a firm, so interim moratorium shall operate against all the partners of the firm as on the date of the making of the application. ठीक है। तो ये इंटरिम मोरेटोरियम लगता है ऑन द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन, और मोरेटोरियम लगता है जो एडमिशन डेट्स। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू सच ट्रांजैक्शंस एज मे बी नोटिफाइड बाय सेटल। ठीक है। 125, अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज बैंक्रप्सी ट्रस्टी। अब जहां पर दो सिचुएशन होगी, क्या? या तो नाम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अगर नाम दिया हुआ है तो सिर्फ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चेक करनी है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो नहीं है। और नाम नहीं दिया हुआ तो बोर्ड से पूछ लेना। ठीक है, उतनी सी बात है। और बोर्ड 10 दिन में रिवर्ट करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से 7 ये दिन। पढ़ा। ठीक है, कोई सेम। नाउ 126, the adjudicating authority shall pass a bankruptcy order within 14 days of receiving the confirmation or nomination of the bankruptcy trustee under section 125. ठीक है। वो जो काली वाली है ना, वो ऊंची कटने से घर परेशान हुई है, अपने लोअर में सही कटवाए। काली वाली देख के तंग कर, मुझे ऊंची काट दी है वो ना दे। ये विवेक शर्मा जी म्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ जी। तो 126, the adjudicating authority shall pass a bankruptcy order within 14 days of receiving the confirmation or nomination of the bankruptcy trustee under section 121. क्या लिखा? 14 days of application नहीं लिखा, 14 days of receiving the confirmation or nomination of the bankruptcy trustee. ठीक है। अच्छा, इंसॉल्वेंसी में क्या लिखा है? अगर इंसॉल्वेंसी में जाए तो इंसॉल्वेंसी में क्या लिखा है? कब ऑर्डर बनाएगी एडजुडिकेटिंग सर अथॉरिटी? 14 days ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। हाँ, तो यहां पर हो गया within 14 days of receiving the confirmation or nomination of the bankruptcy trustee under section 125. The adjudicating authority shall provide the following documents to the bankrupt, creditors and the bankruptcy trustee within 7 days of passing of the bankruptcy order. 7 दिन के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने, किस किस को देने? बैंकरप्ट को, क्रेडिटर्स को और बैंकरप्सी ट्रस्टी। अब इसका नाम देखो, बैंकरप्ट हो गया अभी से ही, जैसे ही ऑर्डर पास हुआ। ठीक है, ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी एंड ए कॉपी ऑफ द बैंक्रप्सी ऑर्डर। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ bankruptcy order. The bankruptcy order passed by the adjudicating authority under section 126 shall continue to have effect till the debtor is discharged under section 138. ठीक है। Now effect of bankruptcy order. क्या effect of bankruptcy order है? On the passing of the bankruptcy order under section 126, the estate of the bankrupt shall vest in the bankruptcy trustee. तो estate किसके पास आ गई? bankruptcy trustee के पास, as provided in section 154. The estate of the bankrupt shall be divided among his creditors. जैसे CIRP में हमने देखा, लिक्विडेशन में क्या होता है? लिक्विडेशन में लिक्विडेशन एस्टेट बनती है ना? तो यहां पर बनेगी बैंक्रप्सी एस्टेट। The estate of the bankrupt shall be divided among his creditors, subject to provisions of subsection 2. A creditor of the bankrupt indebted in respect of any debt claimed as bankruptcy debt. अब यहां डेफिनेशन आ गई क्या? बैंक्रप्सी डेट।
तो बैंक्रप्सी डेट हमें देख लेना है, क्या सेक्शन 79 में डिफाइंड है? बैंक्रप्सी डेट होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। बैंक्रप्सी डेट डिफाइंड है सेक्शन 79 में। सेक्शन 79 सब सेक्शन 5, कुछ कुछ डेफिनेशन हमने छोड़ दी थी 79 में, है ना? कहा था कि जब यस बैंक्रप्सी सर। पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो बैंक्रप्सी डेट यस क्या सर। है? Bankruptcy debt in relation to a bankrupt means any debt owed by him as on the bankruptcy commencement date. Any debt for which he may become liable after the bankruptcy commencement date, but before his discharge by reason of any transaction entered into before the bankruptcy commencement date, and any interest which is a part of the debt under section 171. ठीक है? तो कुछ तो डेट ऐसे होंगे जो बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट को एग्जिस्ट करते होंगे, या फिर कुछ डेट ऐसे होंगे फॉर विच ही मे बिकम लायबल आफ्टर बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट बट बिफोर इज डिस्चार्ज बाय रीजन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बिफोर द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। ट्रांजैक्शन कब होनी चाहिए? बिफोर बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट के बाद में ट्रांजैक्शन करता है, तो हमने तो यहां क्या पढ़ लिया, एस्टेट जो है किसके पास है? बैंक्रप्सी ट्रस्टी के पास है। जब एस्टेट ही बैंक्रप्सी ट्रस्टी के पास है तो ये ट्रांजैक्शन कैसे कर सकता? ठीक है। Subject to provisions of subsection 2, a creditor of the bankrupt indebted in respect of any debt claimed as a bankruptcy debt shall not initiate any action against the property of the bankrupt in respect of such debt, or commence any suit or other legal proceeding except with the leave of the adjudicating authority and on such terms as the adjudicating authority may impose. ठीक है। तो जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर ने भी अगर कोई सूट या लीगल प्रोसीडिंग करनी है तो उसके लिए भी परमिशन लेनी, किसकी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है। दोनों में फर्क है, पहला और दूसरे में क्या फर्क है? पहले में तो कह रहा है इनिशिएट एनी एक्शन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द बैंकरप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट, मतलब डेट तो पहले से था ही, एक्शन भी था, बट इनिशिएट नहीं कर सकता आप अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द बैंकरप्ट, मतलब मॉरेटोरियम लगा हुआ। हम इंसॉल्वेंसी में क्या पढ़ते हैं? इंसॉल्वेंसी में भी है ना, कितने दिन की होती है इंसॉल्वेंसी? 180 9 डेज। है जी? 180 डेज है? 180 डेज सर सीआरपी में तो। नहीं, 180 डेज है सर। हाँ 180 days। ठीक है जी। तो सर मैं एक सर सॉरी आपको लगा, एक बहुत बेसिक सा और बहुत देर का सवाल है मेरे दिमाग में सामने से कि बैंक्रप्सी वर्सेस इंसॉल्वेंसी, एक्चुअल डिफरेंस दोनों मतलब। हाँ देखो ऐसा है भाई, इंसॉल्वेंसी क्या है? इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है कि भाई इनेबिलिटी टू पे द डेट्स। ठीक है। अब दो बातें यस। होगी, या तो वो पेमेंट कर देगा या नहीं करेगा। अगर उसने पेमेंट कर दी तो बैंक्रप्सी स्टार्ट नहीं होगी, और अगर पेमेंट नहीं की तो बैंक्रप्सी स्टार्ट हो जाएगी। तो लेकिन पहले, सर अगर इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, रेजोल्यूशन प्लान जैसा उसने पे कर दिया, तो विल ही बी मतलब ही फिर बी तो यहाँ नोन आएगा ही ना। इंसॉल्वेंट। देखो बैंक्रप्सी स्टार्ट कब होती है? या तो 100 की वजह से होगी, 100 में अगर वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, 115 में अगर उसका रिपेमेंट प्लान अप्रूव नहीं हुआ, और 118 में अगर प्लान फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अगर प्लान अप्रूव हो गया और फुल्ली इंप्लीमेंट हो गया तो जाओ अपने, फिर बैंक्रप्सी होनी ही नहीं है। सर मैं मतलब मेरा ओवरऑल इन जनरल पर्सपेक्टिव है कि मतलब जो बंदा यहाँ आ रहा है, अगर सीआरपी में अगर जो कॉर्पोरेट डेटर है सीडी है, उसमें रिजल्ट प्लान के हिसाब से सारे पेमेंट कर दिए, तो ही और सी विल बी नोन एज, या दैट एंटिटी विल बी नोन एज इंसॉल्वेंट। क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा पूछिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में नहीं, सारों के रेस्पेक्ट में, एक तो अगर कॉर्पोरेट डेटर है वो सीआरपी में आया और रिजल्ट प्लान के हिसाब से उसने पेमेंट कर दिया सारा, तो हाँ तो वो गोइंग वो कंसर्न हो गई इंसॉल्वेंट। ना, फिर तो कंपनी चल जाएगी, बस चल गई, फिर तो कंपनी चल गई। ये जो नया ओके। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसको शेयर ट्रांसफर हो हाँ। जाएंगे, या जो भी होगा रेजोल्यूशन प्लान में उसने मांगा होगा कुछ भी। और अगर ठीक है रेजन प्लान सेटल हो गया, वो लिक्विडेशन में चला गया, तो इसकी हाँ स्टेट क्या लिक्विडेशन होगी में सर? चला गया तो वही लिक्विडेशन स्टेट बनेगी। लिक्विडेटर जो है वो वही
फिडुशियरी कैपेसिटी में एसेट्स that बुक करेगा और फिर वहां से 53 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। that entity will be known as insolvent or what? कौन? जब अगर वो पे नहीं कर पाया, लिक्विडेशन में चला गया, तो हम उसको बोलेंगे क्या वो इंसॉल्वेंट होगा, क्या होगा? वो कहेंगे यार ये तो है ही नहीं उसकी सब। नहीं, किस केस में? लिक्विडेशन के केस में? हाँ मतलब यही था, जैसे कि आपने यहाँ बताया दैट इज फाइन सर। मतलब मेरा दिमाग में कंसर्न ये था कि जैसे अगर वो पे नहीं कर पाया, मतलब तो सॉरी लिक्विडेशन में चला गया। अभी आप देखो, दोनों लिक्विडेशन, चीजों को अलग अलग लो। ओके अभी ठीक है आप सर। इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, कंपनी की बात कर रहे हो, मिक्स मत करो दोनों को। मैं ओवरऑल बात कर रहा था इन जनरल तक करके, कोई भी डाटा है, चाहे वो सीडी है चाहे वो इंडिविजुअल है। नहीं नहीं नहीं, दोनों का अलग अलग प्रोसीजर है। देखो ऐसा है, कंपनी की अलग लीगल एंटिटी है। देखो, कंपनी के केस में बैंक्रप्सी तो होती नहीं, कंपनी के केस में तो लिक्विडेशन ही होगा। ठीक है ना? ओके तो या तो ओके देखो, या तो रेजोल्यूशन होगा, या तो देखो आदमी अस्पताल के अंदर गया है, आईसीयू में हाँ एडमिट है, डॉक्टर ने बोल दिया हाँ क्या किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, सेक्शन 14 लगा हुआ है, मॉरिटोरियम लगा हुआ है। अब या तो वो मरेगा या वापिस आएगा जिंदा, दो ही बातें होंगी, तीसरी बात तो हो समझ नहीं। गया समझ। है ना? अगर वो जिंदा वापस आ गया तो रेजोल्यूशन हो गया या इंसॉल्वेंसी रीपेमेंट हो गया। अगर वो मर गया तो लिक्विडेशन होगा या बैंक्रप्सी होगी, दो ही बातें यस होगी। यस यस सर ओके ठीक है ना? है सर, थैंक यू थैंक यू। और चलिए, subject to the provisions of section 123, the bankruptcy order shall not affect the right of any secured creditor to realize or otherwise deal with the security interest in the same manner as he would have been entitled if the bankruptcy order had not been passed. मतलब वो ये कहता है कि जो बैंक्रप्सी ऑर्डर है, इससे सिक्योर्ड क्रेडिटर के राइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रियलाइज भी कर सकता है या जैसा वो चाहे डील कर सकता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123। क्योंकि 123 में क्या लिखा था? 123 में लिखा था कि भैया या तो आप गिव अप करो, ये लिखा था ना 123 में, या फिर क्या करो कि आप कहो भाई हम अनसिक्योर्ड पार्ट के लिए ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सिक्योर्ड क्रेडिटर shall be entitled to any interest in respect of his debt after the bankruptcy commencement date if it does not take any action to realize his security within 30 days from the said date। मतलब अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो उसका डेट तो कंटिन्यूइंग है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट के बाद में भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कि उसको एक्शन लेना पड़ेगा टू रियलाइज सिक्योरिटी विद इन 30 डेज फ्रॉम दी सेट डेट। सेट डेट मतलब बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। तो जब बैंक्रप्सी कमेंस हो गई, ठीक है, अब एक है सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर को शुरू से लेके चलो। पहली बात, अगर एप्लीकेशन ही सिक्योर्ड क्रेडिटर ने लगाई है, ये भी हो सकता है। अगर एप्लीकेशन सिक्योर्ड क्रेडिटर ने लगाई है तो हमें कौन सा सेक्शन देखना है? हमें सेक्शन ये वाला देखना है, 123। 123 कह रहा है कि भैया आई विल गिव अप द सिक्योरिटी, या फिर मैं अनसिक्योर्ड पार्ट के लिए एप्लीकेशन लगा रहा हूं। ठीक है, अब लेकिन वो कहता है भाई ठीक है, मैं तो अपना रियलाइज करूंगा। ठीक है, मैं तो जो अपने डेट है उसको रियलाइज करूंगा। तो रियलाइज करना है तो फिर आपको 30 डेज के अंदर ये ऑप्शन देनी है। ठीक है, ये यहां पर थे हम लोग। अगर 30 डेज में वो ये ऑप्शन नहीं देता तो क्या होगा? उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आफ्टर द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब भी है कि अगर वो 30 डेज के अंदर ऑप्शन दे देता है तो उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा आफ्टर बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। Where a bankruptcy order under section 126 has been passed against a firm, the order shall operate as if it were a bankruptcy order made against each of the individuals who on the date of the order is a partner in the firm। आप देखो, अच्छा ये क्यों लिखा अगेंस्ट ईच ऑफ द इंडिविजुअल्स? कोई बता सकता है क्या कारण है इसका? ये मैंने क्यों हाईलाइट किया? ऐसे सजाने के लिए तो नहीं कर दिया होगा। अगेंस्ट ईच ऑफ द इंडिविजुअल्स हु ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर इज ए पार्टनर इन द फर्म। तो यहां ध्यान किस पर देना है? इंडिविजुअल पर। मतलब पार्टनरशिप फर्म में तो कंपनी भी पार्टनर हो सकती है।
हो सकते कि नहीं हो सकते? यस सर। है ना? तो वो ये कह रहा है कि भैया ये जो ऑर्डर है ये किसके अगेंस्ट में माना जाएगा? ईच ऑफ द इंडिविजुअल्स हु ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर इज ए पार्टनर इन द। तो कंपनी का क्या होगा? अगर ये पार्टनरशिप फर्म है, अब पार्टनरशिप फर्म में कंपनी भी पार्टनर है, तो उस कंपनी का क्या होगा? लिक्विडेशन होगा सर। सर वो लिक्विडेशन में जाएगी ना कंपनी, यहाँ तो आदमी का बैंकरप्सी होगा ना। बैंकरप्ट तो इंडिविजुअल होगा सर। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, तो डायरेक्टली लिक्विडेशन में चली जाएगी। इससे डायरेक्टली नहीं जाएगी, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बोल रही हूँ सर। The provisions of subsection 1 shall not apply to such transactions as may be notified by the central government in consultation with any financial। तो इस पर एक केस स्टडी बना देते हैं, एक केस स्टडी बना देंगे इसको, इस पॉइंट को कवर करते हुए, है ना? ये जो थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसे ही वो क्वेश्चन बनाता है केस स्टडीज में बेसिकली। डायरेक्टली तो लिखी नहीं है कहानी, क्या होगा उसका। ना 129 थोड़ा सा और स्टडी कर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, where a bankruptcy order is passed on the application for bankruptcy by a creditor under section 123, the bankrupt shall submit his statement of financial position to the bankruptcy trustee within 7 days from the bankruptcy commencement date। ठीक भाई, आप देखो, वो अगर अपने आप ही एप्लीकेशन लगा रहा है 122 में, तो वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स खुद ही दे रहा है बैंकरप्ट। ठीक है, लेकिन अगर क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई है तो बैंकरप्ट shall submit his statement of financial position to the bankruptcy trustee within 7 days from the bankruptcy commencement date। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ये कौन से फॉर्म में होगी? ये रूल 11 है और फॉर्म ई है इसके लिए। तो एक बार फॉर्म ई देख लेते हैं कि फॉर्म ई क्या है। ये है फॉर्म ई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैंकरप्ट। ठीक है जी, ये लिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ बैंकरप्ट एंड इमीडिएट फैमिली, गारंटर, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। ये फॉर्म ई के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंकरप्ट आपको लगानी है। चलिए, हम्म, यहाँ थे हम लोग सेक्शन 129। ठीक, वेयर द बैंकरप्ट इज ए फर्म, its partners as on the date of the order shall submit a joint statement of financial position of the firm and each partner of the firm shall submit a statement of his financial position। अब यहां पर भी सवाल पूछ सकता है कि कंपनी पार्टनर है तो कंपनी क्या अपनी स्टेटमेंट भी लगाएगी? द आंसर इज यस। यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं दिया, यहां ये नहीं लिखा इंडिविजुअल्स, इट्स पार्टनर्स ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, द बैंक्रप्सी ट्रस्टी में रिक्वायर द बैंकरप्ट, या the bankruptcy trustee may require the bankrupt or any other person to submit in writing further information explaining or modifying any matter contained in the statement of the financial position। ठीक, तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी जो है, क्योंकि बैंक्रप्सी ट्रस्टी को ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो बैंक्रप्ट से या किसी एनी अदर पर्सन से जो एसोसिएट हो सकता है, गारंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। नाउ पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग क्लेम्स फ्रॉम क्रेडिटर्स, सेक्शन 130, the adjudicating authority shall send notices within 10 days of the bankruptcy commencement date to the creditors in this mentioned in the statement of affairs submitted by the bankrupt under section 129 or the application for bankruptcy submitted by the bankrupt under section 122। ठीक है, मतलब 122 में तो डेटर ने अपनी स्टेटमेंट दे दी थी, है ना, और 129 में बेसिकली
जब क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई तो डेटर ने फिर अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दी, ठीक है। और जो भी क्रेडिटर्स मेंशन्ड है उसमें, उन सबको नोटिस जाएगा विद इन 10 days ऑफ द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट, एंड इशू ए पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग क्लेम्स फ्रॉम क्रेडिटर्स, ठीक है। The public notice under clause B of subsection 1 shall include the last date up to which the claim shall be submitted and such other matters and details as may be prescribed. And shall be, वो हमारा रूल 9 में अपने को देखना है कि रूल 9 क्या कहता है। ये रूल 9 है हमारा। ये रूल 9 बोलता है कि पब्लिक नोटिस होगा आपका फॉर्म सी के अंदर, ठीक है। ऐसे इंसॉल्वेंसी में कोई फॉर्म नहीं दे रखा, यहां फॉर्म दे रखा। चलिए, क्योंकि ज्यादा आगे हम जाते हैं तो फिर वो पीछे आना दोबारा मुश्किल होता है। Published in leading newspapers, one in English and another in vernacular having sufficient circulation where the bankrupt resides. अच्छा, यहाँ वर्ड लीडिंग न्यूज़पेपर लिखा है, तो क्या बाकी में भी प्रोसेस में भी लीडिंग ही लिखा है या लीडिंग यहाँ का नया ही है वर्ड ये? है जी, लिखा ना लीडिंग न्यूज़पेपर, कई जगह तो कुछ और ही लिखता है वो। नहीं सर, यहाँ पे ये वर्ड न्यू है। दूसरे में तो खाली इंग्लिश एंड एक रीजनल लैंग्वेज लिखा हुआ था। हाँ, अब जैसे जैसे यहाँ पे लीडिंग कर रहा है। है, हाँ, वो कहानी क्या है, इन्हीं बातों पे वो सवाल पूछ लेता है आपसे, एक बट ऑप्शन सर में लीडिंग लीडिंग दे ही देगा। होना चाहिए, ऐसे कोई भी है जी, पेपर में नहीं छपा। लीडिंग न्यूज़पेपर ही होना चाहिए नहीं एटलीस्ट। वो बात नहीं है, मतलब मेरे कहने का आप देखो, अभी तो अपना पर्पस क्या है, अभी हमें कॉमन सेंस से काम नहीं करना, अभी अपने आप को क्या देखना है कि यहाँ लिखा क्या है वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि वो क्या पूछेगा, वो आपको एक एक ऑप्शन में लीडिंग दे देगा, दूसरे में नहीं देगा, तो आपको ऑप्शन वो चूज करनी पड़ेगी। हालांकि लीडिंग का कोई डेफिनेशन, कोई क्राइटेरिया पता नहीं तो क्या है। हाँ, और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन आता है न्यूज़पेपर्स के लिए, उसके हिसाब से होता है कि भाई जिसका वाइड सर्कुलेशन हो उसी को लीडिंग कहते हैं बेसिकली। चलिए, affixed on the premises of the adjudicating authority and placed on the website of the adjudicator, मतलब वो ध्यान में रखना है आपको, दूसरे प्रोसेस से कंपेयर कर लेना है कि वहां पर क्या वर्ड लिखा है, पर्पस ये है हाईलाइट करने का, ठीक है। नोटिस टू द क्रेडिटर्स रेफर टू अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 शैल, अच्छा यहां लिखा है वेयर द बैंकरप्ट रेजिड्स। अब बैंकरप्सी फर्म के अगेंस्ट में हुई, ठीक है, तो फर्म के अगेंस्ट में कहां पर पब्लिक नोटिस जाएगा, उसके 10 पार्टनर है फर्म के, तो क्या 10 पार्टनर के रेजिडेंस पे जाएगा, कैसे कैसे होगा ये? सर, जो पार्टनर के ऊपर हम लोगों ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है उसका रेसिडेंस देखा जाएगा कि वो अरे कौन नहीं से नहीं, अरे मैं तो कह रहा हूँ फर्म के अगेंस्ट में की है। तो जस्ट सर रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ पे फॉर्म रजिस्टर्ड है। हाँ बिल्कुल, हाँ क्या काजल जी कुछ बोल रहे थे आप? सब वही बोल रही थी, रजिस्टर्ड ऑफिस से बोला था सर मैंने। हाँ बिल्कुल, ऐसी ऐसी बातें पूछ लेता है वो कई बार। द नोटिस टू द क्रेडिटर्स रेफर टू अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 शैल इंक्लूड सच मैटर्स एंड डिटेल्स एज में बी प्रेस, ठीक है। तो नोटिस के अंदर क्या जाना है, ये डिटेल्स जानी है आपकी, जो भी आपका प्रेस्क्राइब डिटेल्स। रूल 10, अब रूल 10 क्या बोलता है, ये रूल 10 है। रूल 10 बोलता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल सेंड नोटिस टू द क्रेडिटर्स एज पर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 130 इन फॉर्म डी, ठीक है। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में डायरेक्ट द बैंक्रप्सी ट्रस्टी टू इशू द नोटिसेस रेफर्ड टू इन सब रूल 1 इंस्टेड ऑफ इशूइंग सच नोटिसेस इटसेल्फ, ठीक है। ये कई बार सवाल उठता है कि भाई वहां तो लिखा है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नोटिस इशू करेगी, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब यही होता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोल देती है आरपी को, लिक्विडेटर को, बैंक्रप्सी ट्रस्टी को। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी खुद नहीं कभी भी इशू करती है ना, वो ऑर्डर में लिख देते हैं कि नाउ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हियर बाय डायरेक्ट्स द इंसॉल्वेंसी पर्सनल, रेजोल्यूशन पर्सनल, लिक्विडेटर, बैंक्रप्सी ट्रस्टी टू इशू द रिक्वायर्ड नोटिस, ऐसे करके, है ना। तो नोटिस टू क्रेडिटर्स जाना है आपका फॉर्म नंबर डी के अंदर। चलिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लेम्स सेक्शन 131, द क्रेडिटर्स शैल रजिस्टर क्लेम्स, वर्ड लिखा रजिस्टर,
सवाल पूछ लेता कई बार, कहाँ रजिस्टर, रजिस्टर लॉज, कराएं? फाइल, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन दे देगा। The creditor shall register claims with the bankruptcy trustee within 7 days of the publication of the public notice by sending details of the claims to the bankruptcy trustee in such manner as may be prescribed। ठीक है, तो इसके लिए रूल 12 है। तो रूल 12 क्या बोलता है? ये रूल 12 है हमारा। तो क्रेडिटर जो है ये सबमिट करेगा क्लेम इन फॉर्म नंबर एफ। ठीक है, फॉर्म एफ shall be submitted by the creditor through electronic means or by registered post or speed post or courier। A creditor who fails to submit claim with proof within the time stipulated in the public notice may submit such proof to bankruptcy trustee till the final date referred to in subsection 2 of section 176। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो कब लास्ट डेट है आपका? 176(2) क्या बोलता है? 176(2) बोलता है आपका फाइनल डिविडेंड की बात। ठीक है, तो फाइनल डिविडेंड से पहले तक क्लेम्स आपके आ सकते हैं। द क्रेडिटर शैल बियर द कॉस्ट रिलेटिंग टू द प्रूफ ऑफ क्लेम। चलिए, ये भी हो गया। द क्रेडिटर इन एडिशन टू द डिटेल्स ऑफ हिज क्लेम शैल प्रोवाइड सच अदर इंफॉर्मेशन एंड इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। तो आपका रूल 14 to 16 और रूल 17 to 20। नाउ प्रेपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। आज मैंने आपको एक लिस्ट भी दी है, पीरियड्स वाली भी ना, कि पीरियड्स विच इज स्पेसिफाइड इन द वेरियस प्रोसेसेस। तो बैंक्रप्सी प्रोसेस वाला भी जो पीरियड्स है उसको भी आप एक बार कंपेयर कर लीजिएगा इससे। नाउ 132 क्या बोलता है? प्रेपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल within 14 days from the bankruptcy commencement date prepare a list of creditors of the bankrupt on the basis of the information disclosed by the bankrupt in the application for bankruptcy filed by the bankrupt under section 118 and the statement of affairs filed under section 125 and claims received by the bankruptcy trustee under subsection 2 of section 130। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनानी है कितने दिन के अंदर? विद इन 14 days फ्रॉम द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। नाउ समनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। यहां देखो वर्ड क्या लिखा? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, समनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल, तो यहां पर मीटिंग करनी जरूरी है। इंसॉल्वेंसी में जरूरी नहीं थी, है ना। इंसॉल्वेंसी में जब रिपोर्ट दे रहा है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो उसमें कह देता है कि वेदर मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी कॉल्ड, वेदर मीटिंग इज नेसेसरी, है ना, एंड रीजंस इन केस ही फील्स दैट मीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पर क्या है? यहां लिखा वर्ड शैल। द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल विद इन 21 days फ्रॉम द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट issue a notice for calling a meeting of the creditor to every creditor of the bankrupt as mentioned in the list prepared under section 132। ठीक है, the notice issued under subsection 1 shall state the date of the meeting of the creditors which shall not be later than 21 days from the bankruptcy commencement date, be accompanied with forms of proxy voting, specify the form and manner in which the proxy voting may take place। The proxy voting including electronic proxy voting shall take place in such manner and form as may be specified। तो इसके लिए रेगुलेशंस है, फॉर्म बोले। ठीक है, कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर। तो फॉर्म क्या है? फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी वोटिंग। क्या फॉर्म है काजल जी? फॉर्म फॉर प्रॉक्सी वोटिंग है कोई फॉर्म? हाँ सर, प्रॉक्सी वोटिंग का फॉर्म है सर। हाँ, बताना जरा क्या फॉर्म है। ये आ गया फॉर्म बी, है ना। तो अब करना क्या है? अब जैसे आप यहां लिखते हो ना, तो यहीं पर ही लिख लो इसको। अब ये लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं, यहीं पर आप लिख दो फॉर्म बी, ऐसे कर लिखो, है ना, फॉर्म बी, बस। फिर वहां जाने की जरूरत नहीं, ऐसे कर सकते। नाउ कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स 134। भाई आप अपने हिसाब से लिखते रहो ना, जो भी आपने, चाहे सॉफ्ट कॉपी भी लिखो, सॉफ्ट कॉपी भी एडिटेबल है आपकी, है ना, या हार्ड कॉपी अगर आपने प्रिंट आउट लिया उसके ऊपर लिख दो कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिट। तो ये जो रेगुलेशंस दे रखे हैं इसका भी छोटा छोटा ब्रीफ आप यहीं पर ही लिख लो, है ना, अपनी कॉपी पर। अब यहां पर मैं लिखूंगा तो बहुत क्लमजी हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा हुआ जानबूझ के। कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स 134।
The bankruptcy trustee shall be the convener of the meeting of the creditors summoned under section 133. The bankruptcy trustee shall decide the quorum for the meeting of the creditors and conduct the meeting only if the quorum is present. The following business shall be conducted in the meeting of the creditors in which regard a resolution may be passed, namely the establishment of a committee of creditors. Any other business that the bankruptcy trustee thinks fit to be transacted. The bankruptcy trustee shall cause the minutes of the meeting of the creditors to be recorded, signed, and retained as a part of the record of the bankruptcy process. The bankruptcy trustee shall not adjourn the meeting of the creditors for any purpose for more than 7 days at a time. Now 135. Voting rights of creditors. Every creditor mentioned in the list under section 132. तो कई बार क्या होता है कि यहां देखो नहीं भी लिखा, यहां प्रेस्क्राइब्ड स्पेसिफाइड नहीं लिखा हुआ, जैसे जैसे मैंने रेगुलेशन 22 लिखा यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, बट कई लोग पूछते हैं भाई ये कहाँ लिखा है ये बात बताओ, तो रेगुलेशन 22 में लिखी, ठीक है। सर इसमें जो शेयर डिसाइड द कोरम का क्या मतलब? हाँ, शेयर डिसाइड द कोरम, हाँ हाँ, तो क्या बीटी हैज पावर टू डिसाइड कोरम? हाँ बिल्कुल, और क्या, तो क्या डिसाइड करेगा? इट इज भाई कोरम क्या, देखो 33 से तो कम डिसाइड करेगा नहीं वो। ये पावर क्यों दी गई? और सब 33% जगह तो नहीं है, और सब जगह ऐसी पावर नहीं है, वहां तो फिक्स है 33% होना चाहिए लाइक दिस। भाई वो कहानी क्या बट है, यहाँ पे यहाँ वो पर हम कोरम ना कोई इंडिविजुअल बोलेगा के कि साथ ये डील कर रहे हैं। देखो आप समझो सिचुएशन यहाँ डिफरेंट है, हो सकता है एक ही क्रेडिटर हो, तो एक क्रेडिटर में वो 33% तो डिसाइड नहीं कर सकता, वो कह देगा भाई जो भी क्रेडिटर है वो आना चाहिए मीटिंग में, वो कहानी है। ऐसा है ना, मान लो थोड़ा एक ही इसको क्रेडिटर है और वो कह देगा स्पेसिफाई 33%, जी। तो वो कहानी है। ये यहाँ ना सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ ओपन दे दिया इनको। होना नहीं चाहिए वैसे तो, इसमें लिखा होना चाहिए कोरम क्या होगा। नहीं भाई, हर कोरम कोई के इस पे अगेंस्ट मैंने कोई सिचुएशन क्वेश्चन नहीं बताई ना, करे। मान लो एक ही क्रेडिटर है, तो आप क्या कोरम में क्या लिखोगे, परसेंटेज तो लिख नहीं सकते। बट वहां भी ऐसा कहते सीआईआरपी में भी एक ही हो सकता है कहीं। हाँ वो तो, बट वहां ऐसी सिचुएशन बहुत कम है, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है सीआईआरपी में, यहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। कुछ सोच समझ के बनाया होगा। जो भी लिखा है हम आगे बढ़ेंगे। हम्म। गाँव में ऐसा होता नहीं है कि कोई जो है वो डिसाइड करेगा कोरम, या तो कानून में लिखा हम्म है या नहीं है। हम्म। अब यहाँ पर्पस क्या था पता नहीं, मगर ऐसा कहीं देखा नहीं, वही हाँ डिसाइड हाँ। करेगा, ये कोई हम्म। प्राइवेट कंपनी। हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है। वही। चलिए ठीक है सर। नाउ 135। 135 बोलता है वोटिंग राइट्स ऑफ क्रेडिटर्स। एवरी क्रेडिटर मेंशन्ड इन द लिस्ट अंडर सेक्शन 132 or his proxy shall be entitled to vote in respect of the resolutions in the meeting of the creditors in accordance with the voting share assigned to him. ठीक है, the resolution tribunal shall determine the voting share to be assigned to each creditor in the manner specified by the board. ठीक है, और वो वही है कि वोटिंग शेयर क्या होगा, इन प्रोपोर्शन टू द डेट, है ना, रेगुलेशन 24 में वही बात लिखी है। चलिए, the voting share of a secured creditor shall be in proportion to the unsecured part of the debt, if any, if it has opted to enforce its security interest. Voting share of a secured creditor who has opted to relinquish its security interest shall be in proportion to the amount of the debt. A creditor shall not be entitled to vote in respect of a debt for an unliquidated amount. अगर अमाउंट अभी फाइनल नहीं है तो फिर उसमें वोटिंग शेयर नहीं मिलेगी। The following creditors shall not be entitled to vote under this section, namely पहला, creditor who are not mentioned in the list of creditors. भाई लिस्ट किस बेसिस पे बना रहा है, लिस्ट के दो बेसिस है,
क्या? एक तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो डेटर ने दी, या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो कि क्रेडिटर ने अगर एप्लीकेशन लगाई तो डेटर ने बैंक्रप्सी ट्रस्टी को दी, उसी के या फिर लिस्ट ऑफ क्लेम्स के बेसिस पे। तो ऐसा कोई आदमी हो सकता है जिसने क्लेम ही ना फाइल किया हो, ना डेटर ने उसका नाम दिया, ना जो क्रेडिटर ने जब लिस्ट क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई तो डेटर ने भी उसका नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं दिया। ठीक है। एंड दोज हु हैव नॉट बीन गिवन ए नोटिस बाय द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। ठीक है। तो इनको कोई वोटिंग राइट नहीं। ऐसा हो सकता है क्योंकि आप कब तक आ सकते हो, क्लेम कब तक फाइल कर सकते हो? क्लेम तो आप फाइल कर सकते हो टिल द पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, है ना। क्रेडिटर्स हु आर एसोसिएट्स ऑफ द बैंकरप्ट, तो जो अगर आप एसोसिएट हो तो भी आपको वोटिंग राइट नहीं है। Now administration and distribution of the estate of the bankrupt. The bankruptcy trustee shall conduct the administration and distribution of the estate of the bankrupt in accordance with the provisions of chapter 5. वो चैप्टर 5 में चला गया सीधा, उसको अलग से नाम दे दिया। ठीक है। Now 137. The bankruptcy trustee shall convene a meeting of the committee of creditors on completion of the administration and distribution of the estate of the bankrupt in accordance with the provisions of chapter 5. ठीक है। तो ये जो चैप्टर 4 चल रहा है हमारा, इसमें कहानी है जयमाला तक की। जो फेरे होने वो चैप्टर 5 में दिया, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग चैप्टर में दे दी कहानी। यहां जल्दी से समराइज करके कि भाई बाकी कहानी हम अगले चैप्टर में बताएंगे। 137 क्या बोलता है? The bankruptcy trustee shall convene a meeting of the committee of creditors on completion of the administration and distribution of the estate of the bankrupt in accordance with the provisions of chapter 5. ठीक है। The bankruptcy trustee shall provide, मतलब यहां पर ये कह दिया कि जब ये एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाए तब आप मीटिंग कॉल कर लीजिए ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। The bankruptcy trustee shall provide the committee of creditors with a report of the administration of the estate of the bankrupt in the meeting of the said committee. अब कमेटी अप्रूव करेगी रिपोर्ट को, सबमिटेड बाय द bankruptcy trustee within 7 days of the receipt of the report and determine whether the bankruptcy trustee should be released under section 148. ठीक है। The bankruptcy trustee shall retain sufficient sums from the estate of the bankrupt to meet the expenses of convening and conducting the meeting required under this section during the administration of the estate. क्योंकि जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि ये वाली मीटिंग कॉल होनी है बाद में जब डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो इस मीटिंग के जो एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए पहले वो प्रोविजन रख लेगा। ठीक है। मतलब ये है जैसे भंडारा बट रहा है, भंडारे के बाद में जो ट्रस्टीज है उनकी मीटिंग होनी है ना, तो उनकी जो मीटिंग पे खर्चा होगा उसके लिए पहले से ही वो पैसा रख ले। 138 डिस्चार्ज ऑर्डर। द बैंक्रप्सी ट्रस्टी shall apply to the adjudicating authority for a discharge order on the expiry of 1 year from the bankruptcy commencement date or within 7 days of the approval of the committee of the creditors of the completion of administration of the estate of the bankrupt under section 137 where such approval is obtained prior to the period mentioned in clause. तो या तो 1 साल या within 7 days of the approval. ठीक है। The adjudicating authority shall pass a discharge order on an application by the bankruptcy trustee under subsection 1. A copy of the discharge order shall be provided to the board for the purpose of recording an entry in the register referred to in section 196. मतलब इसके लिए अलग से डिस्चार्ज ऑर्डर हो रहा है। एक तो बैंक्रप्ट का डिस्चार्ज ऑर्डर है, एक बैंक्रप्सी ट्रस्टी का डिस्चार्ज ऑर्डर। ठीक है। दोनों अलग अलग होंगे। वो पहले छूट जाएगा बैंक्रप्ट, ये बाद में छूटेगा। ठीक है। 138 effect of discharge. The discharge order under subsection 2 of section 138 shall release the bankrupt from all the bankruptcy debt. तो रिलीज किससे हो रहा है? ये बैंक्रप्सी डेट से रिलीज हो रहा है। ठीक है। और बैंक्रप्सी डेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है सेक्शन 79 में। सेक्शन 79 क्या बोलता है? बैंक्रप्सी डेट क्या है? जो भी डेट आपका था
bankruptcy commencement date पे, या any debt for which he may become liable after the bankruptcy commencement date but before his discharge by reason of any transaction entered into before the bankruptcy commencement date, any interest which is a part of the, ठीक है। तो bankruptcy debt defined है सेक्शन 79 सबसेक्शन 5 में, उसी से डिस्चार्ज हो रहा है जो डिस्चार्ज है, प्रोवाइडेड दैट द डिस्चार्ज शैल नॉट अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी और अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4 and 5 ऑफ पार्ट 3। रिलीज द बैंक्रप्ट फ्रॉम एनी डेट, मान लो फ्रॉड से कोई डेट इनकर कर लिया, उससे डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। Release the bankrupt from any debt incurred by means of fraud or breach of trust to which he was a party, or discharge the bankrupt from any excluded debts। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सक्लूडेड डेट से अभी भी छुटकारा नहीं है। कोई चालान है, कोई एलिमनी देनी है, कोई स्टूडेंट लोन वाला है, या फिर कोई सिक्योर्ड लोन है, उससे ये फिर भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ बैंकरप्ट, द बैंकरप्ट shall from the bankruptcy commencement date be subject to the disqualifications mentioned in this section। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 140 में डिस्क्वालिफिकेशंस है और सेक्शन 141 में रिस्ट्रिक्शंस। अब आप नोट करोगे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस इंसॉल्वेंट पर नहीं है। इंसॉल्वेंसी में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, इंसॉल्वेंसी क्या है? इंसॉल्वेंसी का मतलब शुरू हुई प्रोसेस, हो सकता है आप पेमेंट कर दो, तो पहले से थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे आप। वो तो तभी लगाएंगे ना जब आप पेमेंट नहीं करोगे, तो है ना। तो बैंक्रप्सी में रिस्ट्रिक्शन, और कब से रिस्ट्रिक्शन है? जब बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन? इन एडिशन टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। तो ये भी है, अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन किसी दूसरे लॉ में है उसके अलावा, ए बैंक्रप्ट शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड और एक्टिंग एज अ ट्रस्टी or representative in respect of any trust, estate or settlement, being appointed or acting as a public servant। public servant आपका ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वहां पर डिफाइंड है। being elected to any public office where the appointment of such office is by election, and being elected or sitting or voting as a member of any local authority। ठीक। अब वो क्या करेगा? वो छोटी छोटी बातें आपसे पूछ सकता है। वो कह देगा भाई आरडब्ल्यूए का इलेक्शन है, अब आरडब्ल्यूए के इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा है, तो क्या हो सकता है? क्या आंसर होगा आपका? सर पब्लिक ऑफिस होना चाहिए। हाँ, पब्लिक ये ऑफिस मतलब ये है नहीं होना कि चाहिए। जहां पर पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग इन्वॉल्व है ना, वो पब्लिक ऑफिस। एंड बीइंग इलेक्टेड इसमें और नहीं सिटिंग आता। और वोटिंग एज ए मेंबर ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी। एनी डिस्क्वालिफिकेशन टू विच ए बैंकरप्ट, ऐसे आपको सोचते रहना है, आपको माइंड अपना इसी में लगा देना है पूरा, क्योंकि वो कुछ भी सवाल पूछ सकता है। तो जब आपका माइंड फर्टाइल हो जाएगा ना, ऐसे सवाल अपने आप से पूछते रहोगे, तो फिर पास होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। एनी डिस्क्वालिफिकेशन टू विच ए बैंकरप्ट मे बी सब्जेक्ट अंडर दिस सेक्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट इफ the bankruptcy order against him is modified or recalled under section 142 or he is discharged under section 138। तो या तो ये डिस्चार्ज हो जाए या फिर बैंक्रप्सी ऑर्डर ही मॉडिफाई या रिकॉल। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म पब्लिक सर्वेंट, वो कह रहा है कि आपको पब्लिक सर्वेंट कहां से देखना है? इंडियन पीनल कोड्स 141 रिस्ट्रिक्शंस ऑन बैंकरप्ट। ए बैंकरप्ट फ्रॉम दी बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट, तो ये तो हो गई हमारी डिस्क्वालिफिकेशंस 140 में, और 141 में हो गई रिस्ट्रिक्शंस। क्या रिस्ट्रिक्शंस? ए बैंकरप्ट फ्रॉम द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट शैल नॉट एक्ट एज ए डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक पार्ट इन और बी कंसर्न्ड इन द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। ठीक है। Without the previous sanction of the bankruptcy trustee, be prohibited from creating any charge on his estate or taking any further debt। ठीक है। क्या लिखा? Without the previous sanction of the bankruptcy trustee, मतलब वो फर्दर डेट भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन चाहिए बैंक्रप्सी ट्रस्टी से।
be required to inform his business partners that he is undergoing a bankruptcy process prior to entering into any financial or commercial transaction of such value as may be prescribed. 1 लाख की लिमिट है रूल 15 में, ठीक है। तो अगर हम रूल 15 देखें तो रूल 15 बोलता है कि 1 लाख की लिमिट है। Without the previous sanction of the adjudicating authority, be incompetent to maintain any legal action or proceeding in relation to the bankruptcy debts. मतलब अब बैंक्रप्सी डेट से रिलेटेड कोई भी आपको लीगल एक्शन या प्रोसीडिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। नॉट बी परमिटेड टू ट्रेवल ओवरसीज विदाउट द परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। Any restrictions to which a bankrupt may be subject under this section shall cease to have effect. या तो डिस्चार्ज ऑर्डर इशू हो जाए 138 में या बैंक्रप्सी ऑर्डर मॉडिफाई या रिकॉल, ठीक है। अब ये भी पढ़ लेते हैं कि क्या है मॉडिफिकेशन और रिकॉल ऑफ बैंक्रप्सी ऑर्डर। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे ऑन एन एप्लीकेशन और सो मोटो मॉडिफाई और रिकॉल ए बैंक्रप्सी ऑर्डर whether or not the bankrupt is discharged if it appears to the adjudicating authority that there exists an error apparent on the face of such order, ठीक है। और both the bankruptcy debts and the expenses of the bankruptcy have after the making of the bankruptcy order either been paid for or secured to the satisfaction of the adjudicating authority. या तो पेमेंट हो गई या फिर सिक्योर हो गया। सिक्योर कैसे? बैंक गारंटी हो सकती है। Where the adjudicating authority modifies or recalls the bankruptcy order under this section, any sale or other disposition of property, payment made or other things duly done by the bankruptcy trustee shall be valid, except that the property of the bankrupt shall vest in such a person as the adjudicating authority may appoint, or in default of any such appointment revert to the bankrupt on such terms as the adjudicating authority may direct, ठीक है। A copy of the order passed by the adjudicating authority under subsection 1 shall be provided to the board for the purpose of recording an entry, and modification or recall order shall be binding on all creditors so far as it relates to any debts due to them which forms a part of the bankruptcy standard of conduct as per section 208. Now fees of the bankruptcy trustee. तो फीस कैसे होगी? फीस के लिए आपको रेगुलेशन नंबर 4 दे रखा, आपको रेगुलेशन नंबर 4 के हिसाब से फीस देखनी है। ये है रेगुलेशन नंबर 4। तो फीस कैसे होगी? सच फीस एज डिसाइडेड बाय द कमेटी, या फिर परसेंटेज, वो शेड्यूल 1 में परसेंटेज दे रखी है उसके हिसाब से। चलिए a bankruptcy trustee appointed for conducting the bankruptcy process shall charge such fees as may be specified in proportion to the value of the estate of the bankrupt. The fees for the conduct of the bankruptcy process shall be paid to the bankruptcy trustee from the distribution of the estate of the bankrupt in the manner provided in section 178. तो ये section 178 क्या है? ये 53 जैसा ही है, जैसे 53 है कंपनीज के केस में, यहां सेक्शन 178 है। रिप्लेसमेंट ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी, रूल 8 बोलता है, क्या कहता है कि कमेटी, यहां पर कमेटी आ गई, where committee of creditors is of the opinion that at any time during the bankruptcy process a bankruptcy trustee appointed under section 125 is required to be replaced, it may replace him with another bankruptcy trustee in the manner provided under this section. तो वोट क्या है? 75%। तो यहां 75 भी ध्यान में रखना। 75% of voting share proposed to replace the bankruptcy trustee appointed under section 125, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 7 दिन के अंदर और बोर्ड 10 दिन के अंदर, ठीक है। और पुराने वाला जो है नए वाले को सारे रिकॉर्ड्स दे देगा, कोऑपरेट करेगा। रेजिग्नेशन भी हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस ही छोड़ना चाह रहा है
वही 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। तीसरा वैकेंसी। वैकेंसी और रेजिग्नेशन में क्या फर्क है? वैकेंसी हो सकता है डेथ वेथ हो जाए तो। इफ ए वैकेंसी occurs in the office of the bankruptcy trustee for any reason other than his replacement or resignation, तो तीनों सिचुएशन दे दी, रेजिग्नेशन, रिप्लेसमेंट और वैकेंसी। In the event of the occurrence of vacancy, the adjudicating authority shall direct the board for replacement. बोर्ड 10 दिन के अंदर बता दें और फिर वो रिकमेंड कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे विद इन 14 डेज। पुराने वाला जो है वो पोजीशन ऑफ एस्टेट दे देगा, किसको? नए वाले। चलिए ये भी हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर कि ऐसा नहीं है वैकेंसी टेम्परेरी रीजन से नहीं हो सकती। वैकेंसी मतलब परमानेंट रीजन, डेथ हो गई, कोई हैंडीकैप्ड हो गया, प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई if the vacancy is occurred due to temporary illness or temporary leave of the bankruptcy trustee। ठीक है, तो टेम्परेरी इलनेस या टेम्परेरी लीव में अलग सिचुएशन होगी, ये परमानेंट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। 148 रिलीज ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। A bankruptcy trustee shall be released from his office with effect from the date on which the adjudicating authority passes an order appointing a new bank। तो देखो, अगर रिप्लेसमेंट हो गया, रेजिग्नेशन हो गया या वैकेंसी हो गई, तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी कब रिलीज होगा? इसके लिए भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी। ठीक है, और ये जो रिलीज हो रहा है ये नए वाले को सारी इंफॉर्मेशन देगा। या फिर मान लो इसने पूरा कंप्लीट कर दिया प्रोसेस, ना इसका रेजिग्नेशन हुआ, ना रिप्लेसमेंट हुआ, ना कोई वैकेंसी हुई, इसने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, तो ये कब रिलीज होगा? इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये होगा फ्रॉम द डेट ऑन विच द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव्स द रिपोर्ट ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी अंडर सेक्शन 137। तो ये हमने पढ़ा था ना 137 में। 137 में क्या पढ़ा था कि जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो एक मीटिंग कॉल होगी, है ना, और मीटिंग में फिर सीओसी इसको रिलीज करेगी, सीओसी इसकी रिपोर्ट को अप्रूव करेगी। ठीक है, तो ये कब हो रहा है? फ्रॉम द डेट ऑन विच द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव्स द रिपोर्ट ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। कई बार सवाल पूछते हैं कि इस केस में कब रिलीज हो, तो होगा ये फ्रॉम द डेट ऑन विच द सीओसी अप्रूव्स द रिपोर्ट ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी अंडर सेक्शन 137 ऑन कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट। ठीक है, अब हमारे पास आ गया असली इसमें मसाला, ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट। क्या कहते हैं? 149 फंक्शंस ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। ये मिलते जुलते हैं किससे? लिक्विडेशन से। The bankruptcy trustee shall perform the following functions in accordance with the provisions of this chapter: investigate the affairs of the bankrupt, realize the estate and distribute the estate of the bankrupt। और ड्यूटीज क्या है बैंक्रप्ट की टुवर्ड्स द बैंक्रप्सी ट्रस्टी? बैंक्रप्ट कौन? मतलब बहू समझ लो, और बैंक्रप्सी ट्रस्टी कौन? मतलब सास समझ लो। द बैंक्रप्ट शैल असिस्ट द बैंक्रप्सी, समझने के लिए, द बैंक्रप्ट शैल असिस्ट द बैंक्रप्सी ट्रस्टी इन कैरिंग आउट हिज फंक्शंस अंडर दिस चैप्टर बाय giving to the bankruptcy trustee the information of his affairs, attending on the bankruptcy trustee at such times as may be required, giving notice to the bankruptcy trustee of any of the following events which have occurred after the bankruptcy commencement date। अब ऐसा भी हो सकता है कि bankruptcy commencement date के बाद में इसको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, या ये कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले, एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द बैंक्रप्ट, डिवोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी अपॉन द बैंक्रप्ट। डिवोल्यूशन मतलब अदर देन एक्विजिशन, मतलब किसी की डेथ हो गई, उसकी प्रॉपर्टी इसके पास आ गई, वो डिवोल्यूशन। ठीक है, या कोई एचयूएफ है, एचयूएफ में पार्टीशन हो गया तो डिवोल्यूशन हो सकता है। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द बैंक्रप्ट, केबीसी में कोई नाम जीत गया, डूइंग ऑल अदर थिंग्स एज में बी प्रेजेंट। ठीक है, तो इसकी ड्यूटी है इन्फॉर्म करना। कितने दिन में बताना है? विद इन 7 days ऑफ सच इंक्रीज, एक्विजिशन और डिवोल्यूशन। क्या इसका कोई फॉर्मेट है? कोई फॉर्मेट नहीं है इसके लिए, है ना।
The bankrupt shall continue to discharge the duties under subsection 1 other than the duties under clause C even after the discharge order. मतलब सी वाली ड्यूटी कौन सी है? कोई एक्विजिशन, डिवोल्यूशन या इंक्रीज। तो इसके बारे में अगर एक बार डिस्चार्ज ऑर्डर इशू हो जाए उसके बाद में नहीं बताना, ठीक है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो फिर भी बतानी, ठीक है। 150 राइट्स ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्ट फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग। क्योंकि ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि 138 में बैंक्रप्ट तो छूट गया, लेकिन बैंक्रप्सी ट्रस्टी तो डिस्चार्ज नहीं हुआ। बैंक्रप्सी ट्रस्टी कब डिस्चार्ज हो रहा है? जब कमेटी ने उसकी रिपोर्ट अप्रूव की तब, ठीक है। राइट्स ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ये राइट्स वैसे ही जैसे लिक्विडेटर के राइट है, सेम। For the purpose of performing his functions under this chapter, the bankruptcy trustee may by his official name, अपने ऑफिशियल नेम से होगा, ये नहीं कि प्रॉपर्टी उसकी अपने नाम करवा ले। ऑफिशियल, ऑफिशियल नेम मतलब जैसे बैंक्रप्ट है मोहनलाल, तो मोहनलाल, और ये है सोहनलाल बैंक्रप्सी ट्रस्टी, तो सोहनलाल बैंक्रप्सी ट्रस्टी ऑफ मोहनलाल, ऐसे ऑफिशियल। Hold property of every description, make contracts, sue and be sued, enter into engagements in respect of the estate of the bankrupt, employ persons to assist him, employ भी कर सकते, execute any power of attorney, deed or other instrument, and do any other act which is necessary or expedient for the purpose of or in connection with the exercise of his rights। तो ये rights हैं किसके? bankruptcy trustee। फिर general powers क्या है? The bankruptcy trustee may, while discharging his functions under this chapter, sell any part of the estate of the bankrupt, give receipts for any money, prove rank, claim and draw a dividend in respect of such debts due to the bankrupt as are comprised in the estate। मान लो इस bankrupt ने कोई पैसे लेने तो उसके लिए ये करेगा, ठीक है। Where any property is held by any person by way of pledge or hypothecation, ठीक है। Exercise the right of redemption, मतलब इसके पास कोई प्रॉपर्टी हाइपोथेकेटेड है, किसके पास? बैंकक्रप्ट के पास। तो अब बैंकक्रप्ट के पास तो कुछ राइट है नहीं, तो ये राइट एक्सरसाइज करेगा, राइट ऑफ रिडेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द रिलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट बाय गिविंग नोटिस टू द सेड पर्सन। वेयर एनी पार्ट ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंकक्रप्ट कंसिस्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज इन ए कंपनी और एनी अदर प्रॉपर्टी व्हिच इज ट्रांसफरेबल इन द बुक्स ऑफ ए पर्सन, exercise the right to transfer the property to the same extent as the bankrupt might have exercised if he had not become bankrupt. Deal with any property comprised in the estate of the bankrupt to which the bankrupt is beneficially entitled in the same manner as he might have done। ठीक, तो राइट ऑफ रिडेम्पशन करना है, कोई ट्रांसफर करनी है, तो ये सारी जैसे बैंकरप्ट करता, अब बैंकरप्ट तो कर नहीं सकता, तो ये कर सकता। नाउ अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स फॉर सर्टेन एक्ट्स, सेक्शन 153। ये सेक्शन 153 आपका मिलता जुलता है किससे? सेक्शन 28 से। सेक्शन 28 हमने पढ़ा था सीआईआरपी में। सेक्शन 28 क्या बोलता था कि भाई आपका प्रायर अप्रूवल ऑफ, हाँ, प्रायर अप्रूवल है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्ट्स बाय द सीओसी। यहां पर भी कुछ ऐसा ही बोलता है। क्या बोलता है? आफ्टर प्रोक्योरिंग दी अप्रूवल। दोनों में चेंज कर दिया, वहां प्रायर अप्रूवल लिखा, वहां तो लिखा पोस्ट, अगर प्रायर अप्रूवल नहीं है तो वॉइड हो जाएगा। यहां पर यह भी लिख दिया कि अगर कुछ काम कर लिया है जल्दी में तो फिर पोस्ट अप्रूवल भी हो सकती है, ठीक है। वो कहां लिखा है? 153 में शायद लास्ट में लिखा। अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स फॉर सर्टेन एक्ट्स। The bankruptcy trustee, for the purpose of this chapter, may, after procuring the approval of the committee of creditors, carry on any business of the bankrupt as far as may be necessary for winding it up beneficially, bring, institute or defend any legal action or proceeding, except as consideration for the sale of property, mortgage or pledge, any right, option or other power forms part of the estate, make payments or incur liabilities। मान लो स्टॉक ऑप्शन कोई है ना, अब स्टॉक ऑप्शन में अगर कुछ पेमेंट करनी तो पेमेंट करेगा, है ना। Refer to arbitration or compromise, make compromise or other arrangement,
मेक कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट एज मे डीम एक्सपीडियंट। ठीक है। उसके अलावा अपॉइंट द बैंकरप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, अपॉइंट द बैंकरप्ट मतलब बैंकरप्ट को ही अपॉइंट कर रहा है। जैसे सीआईआरपी में तो क्या होता है कि बोर्ड की पावर खत्म हो जाती है, वहां तो डायरेक्टर को आप किसी काम के लिए नहीं अपॉइंट कर सकते, यहां कर सकते, क्योंकि यहां वी आर डीलिंग विद इंडिविजुअल्स या नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म्स। तो हो सकता है उसको ही अपने बिजनेस की नॉलेज, उसको कहेंगे भाई तू ही चला ले। अपॉइंट द बैंकरप्ट टू सुपरवाइज द मैनेजमेंट ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट और एनी पार्ट ऑफ इट, carry on his business for the benefit of his creditors, assist the bankruptcy trustee in administering the estate of the bankrupt। ठीक। तो ये सारे। अब आप कहोगे अपॉइंट का मतलब क्या मतलब है? अपॉइंटमेंट का मतलब क्या सैलरी भी मिलेगी? यस सर, मिलेगी। वे 154 vesting of estate of the bankrupt in bankruptcy trust, the estate of the bankrupt shall vest the bankruptcy trustee immediately from the date of his appointment, और वेस्टिंग जो है इट शैल टेक प्लेस विदाउट एनी कन्वेंस असाइनमेंट और 155 एस्टेट ऑफ द बैंक। क्या एस्टेट में क्या आएगा? ये वही है जो 36 में लिखा। क्या नहीं आएगा? एक तो एक्सक्लूडेड एसेट्स नहीं आएंगे, है ना। अब एक्सक्लूडेड एसेट्स हमें दोबारा पढ़ लेने एक बार। एक्सक्लूडेड एसेट्स में कहा लिखा? 79 में, है ना। यस सर। हाँ लाइबिलिटी टू हाँ। लाइबिलिटी टू पे नहीं डैमेजेस, नहीं नहीं लाइबिलिटी नहीं टू नहीं पे। नहीं, वो नहीं 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 नहीं, एसेट्स की बात, एक्सक्लूडेड अच्छा, एसेट। एसेट हाँ पर अनएनकम्बर्ड, अनएनकम्बर्ड हाँ टूल्स हाँ। बुक। तो अब जब हम ये पढ़ते हैं 7914, उसमें क्या खास बात है? उसमें देखो, है तो 5 पार्ट्स उसके, लेकिन पांचों में अलग अलग कहानी लिखी है। क्या? पहले में तो लिख दिया डेटर और बैंकरप्ट फॉर हिज पर्सनल यूज, दूसरे में लिख दिया फॉर सेटिस्फाइंग द बेसिक डोमेस्टिक नीड्स ऑफ द बैंकरप्ट एंड हिज इमीडिएट फैमिली, तीसरे में लिख दिया डेटर और इमीडिएट फैमिली, चौथे में लिख दिया डेटर और इमीडिएट फैमिली, और पांचवें में लिख दिया ओन्ड बाय द डेटर। मतलब अलग अलग चीजें लिखी। कुछ केस में फर्स्ट सिर्फ एंड डेटर लिखा है, कुछ केस में बाकी। डेटर और इमीडिएट फैमिली लिखा है, कुछ केस में डेटर बैंकरप्ट और इमीडिएट फैमिली लिखा। तो उसके हिसाब से ही हमारे को पढ़ना है। ठीक। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द बैंकरप्ट ऑन ट्रस्ट फॉर एनी अदर पर्सन, ऑल सम्स ड्यू टू एनी वर्कमैन और एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड ग्रेच्युटी फंड। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट बात है। मान लो ये बिजनेस कर रहा है, प्रोपराइटर है ना, इसने पीएफ काट रखा है, तो वो जो पैसा है ना, वो आपका ये जो है एस्टेट में इंक्लूड नहीं होगा, उसकी अलग से पेमेंट करनी होगी। सच एसेट्स एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 156, क्योंकि पीएफ के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे केसेस। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड डॉक्यूमेंट्स टू बैंक्रप्सी ट्रस्ट। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसके पास, बैंक्रप्ट उसके बैंकर के पास या एजेंट के पास, ठीक है, which the bankruptcy trustee is required to take possession for the purpose of the bankruptcy process, shall deliver the said property and documents to the bankruptcy trustee। अब अगले सेक्शंस जो आ रहे हैं 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165। ठीक है। अब इन सेक्शंस के लिए हमने क्या किया हुआ है? ये सेक्शंस के लिए हमने एक इलस्ट्रेशन बना रखी है। उस इलस्ट्रेशन में ना ये वाले सेक्शंस दिए हुए हैं, तो ये वहां से देख लेने हैं। ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं बस आपको वो दिखा देता हूं कि वो कहाँ दिए हुए हैं, क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट सेक्शंस हैं। तो डिफिकल्ट सेक्शंस के लिए हमने क्या किया कि इसको ना अलग ही इलस्ट्रेशन बना दी इसकी। तो ये मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा।
ये केस स्टडीज ऑन पार्ट 3, ये एक मिनट, ये मैं शेयर करता हूँ आपसे। आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये ग्रुप पे डाल दूंगा ये केस स्टडीज। तो इसमें क्या है कि हमने ना वो सारा इसमें किया हुआ है। ये तो वन लाइनर है, सेक्शन वाइज याद करने के लिए, है ना। जो वो चीज मैं दिखाना चाह रहा था आपको, इलस्ट्रेशंस। ये किसी स्टूडेंट ने बोला था जी बड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप ना इसकी एक इलस्ट्रेशन बना दो, इलस्ट्रेशन से समझ में आ जाता है। तो ये इलस्ट्रेशन है, ठीक है जी, नजर आ रही होगी आपको स्क्रीन पर, यस। है ना। तो इसमें ये सेक्शन वाइज सारे बता दिए, एक एक सेक्शन को डिस्क्राइब किया है, सिचुएशंस। पहले सेक्शन क्या बोलता है वो लिखा है, उसके बाद में फिर इलस्ट्रेशन है, सेक्शन है, फिर इलस्ट्रेशन है, इस तरह से। तो 158 ऑनवर्ड्स ये सारे इसके अंदर बना रखे, ठीक है जी, 158 टू 164। तो आज की कथा यही समाप्त करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट सर। तो समझ में तो आ ही रहा होगा मेरे ख्याल, देखो मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से।